Hello students, we have started with the topic money, and in the last lecture children we discussed introduction related to money. I give you the definitions of money और फिर बच्चों हमने बात की थी about the barter system. The important answer that we discussed in the last lecture related to what are the problems or what are the difficulties in the barter system. और ये बार्टर सिस्टम के बच्चों लोग प्रॉब्लम्स की वजह से किस तरीके से हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमीज की तरफ आए थे. And I told you about those two definitions about money. One was given by Crother, that money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. और एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगा तो इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर वॉकर. मनी इज व्हाट मनी डज. कोई भी चीज जो पैसे का काम करती है उसको आप पैसा करके बोल सकते हो, राइट? अच्छा, देन चिल्ड्रन आई वाज जस्ट गिविंग यू अ overview of how this money has evolved over the years, right? That means money children, it has not come by any revolution, it has come by evolution. इवॉल्व होना, ग्रेजुअली चेंजेस आते गए और अभी का जो पैसा है हम लोग यूज करते हैं चिल्ड्रन, इट्स एक्चुअली डिराइव फ्रॉम दैट ओल्ड मनी दैट वी हैड. So here children, there's a chart or there's a flow that they have given. We all started children with what is known as the animal money. So there was a time children when people used to use animals as money. So people like cows, goat, sheep, all these things they were considered as money. So any person in the village who had more cows or more buffaloes or more goats would be actually considered as a very rich person. But at the same time children, this animal money, see children, we all are aware that it is very difficult to use living things as money. तो living things को चलो money करके माना थोड़ा difficult होता है क्योंकि they are prone to death ना children, so उसका long lasting nature नहीं होता है. अच्छा, फिर कुछ सालों के बाद हमने देखा children कि like we came across the commodity money. So we started using different things as money. तो जो भी चीज मिलती है उसको हम लोग पैसा करके यूज कर लेते थे. अच्छा, लेकिन उसका भी बच्चों ड्यूरेबिलिटी पेरिशेबिलिटी की वजह से देन वी केम टुवर्ड्स मेटालिक मनी. सो स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स एज मनी. मेटल्स के बाद में चिल्ड्रन वी केम टुवर्ड्स मेटालिक कॉइन्स. फिर धीरे धीरे मेटल्स कम होते गए, फिर हमने पेपर को पैसा करके यूज करना चालू किया. देन वी आल्सो हैड क्रेडिट मनी चिल्ड्रन. क्रेडिट मनी इज समथिंग लाइक चेक्स एंड ऑल. अच्छा, then we came towards presently we have got plastic money, debit cards, credit cards, and ultimately children we have come towards the electronic money. तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल मनी यूज करते हैं, वैलेट मनी होता है. द सेम थिंग चिल्ड्रन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर. ये जो अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया उसी को आप यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो. सो children, first one that you come across here, you just observe these diagrams that are given to you, right? So we all started with the first one children, that was known as animals being used as money. अच्छा, animals के बाद में we started using different commodities as money. अच्छा, commodities के बाद में we started using metals. metals के pieces बच्चों लोग पैसा करके यूज किया जाता था. अच्छा, slowly children we started designing these metals and then we came across metal और metallic coins. तो हमने coins को पैसा करके यूज करना चालू किया था. अच्छा, after the coins, because there was a shortage of coins and costly coins or costly metals were not available, then we came towards paper money. So we started printing paper as money. अच्छा, it's impossible to keep or carry a lot of paper money, coins and all. So we had some replacements and then we came across some things which are referred to as credit money बोलते हैं, जैसे कि checks are referred to as credit money. अच्छा, then we wanted to evolve above that and then we came across those credit cards and debit cards. And credit cards and debit cards children are referred to as plastic money in general. और आज के डेट पे बच्चों लोग वी हैव कम टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मनी. सो इट्स नथिंग बट चिल्ड्रन a variation of digital money.
So we got Phone Pay, Google Pay, for example, Amazon Pay, all these Beam, UPI apps that we have got ना. अच्छा, तो बच्चों लोग ये था पूरा जर्नी कि how money has evolved over the years, right? अच्छा, the same answer children that they have given you here, we can just have a look at this. तो बच्चों लोग टाइप्स ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये सबका आंसर सेम रहेगा. तो टाइप्स ऑफ मनी में children, the first one that we come across, it's nothing but the animal money. So children, during the proto-historic period, or we also refer to as a prehistoric period, animals being used as money. In fact, animals like cows, sheep, goat, they were used for exchanging things. So if you had sheep and you wanted to buy some rice, you could hand over the sheep to that farmer, and in exchange you can get some rice or whatever crops that you want. So animals were considered like wealth during those times. But there was one problem children कि these animals were not divisible. तो indivisibility का problem था यहाँ पे. So उसके बाद में हमने commodities को पैसा करके use करना चालू कराया था. Right? So this was the transition that has taken place. Children, the second one that you can see here, commodity को पैसा करके मानते थे. So in the olden days, people started using commodities as money. In the sense कि like climatic nature होता है अलग अलग commodities का, अलग अलग climate, अलग अलग seasons में अलग अलग commodities मिलता है. जैसे कि children, in the cold areas, people started using animal skin as money. अच्छा, जहाँ पे agriculture बहुत होता था बच्चों, वहाँ पे grains को पैसा करके use किया जाता था. People living in the coastal areas, they started using shells as money. अच्छा, those people who stay in the forest on all feathers, tusk of animals, salt again in coastal areas, कोई भी आर्टिकल जो चलो बहुत रेयरली मिलते थे, वैसे आर्टिकल्स को हमने पैसा करके यूज करना चालू किया. इतना तक कि बच्चों हमने स्टोन्स को भी पैसा करके यूज किया था. सो इवन स्टोन्स वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. लेकिन इसको स्टोर करके रखना प्रॉब्लम होता है, इसके लिए ज़्यादा जगह लगती है. तो हमने फिर मेटल्स को इम्प्लोर करना चालू किया था, एंड देन वी स्टार्टेड हैविंग अनदर फॉर्म ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक मनी. तो ठीक है, अपना थर्ड वाला चलो पैसा आ गया यहाँ पे, दैट इज रिफर टू एज मेटेलिक मनी. अच्छा, मेटल्स में चलो कौन कौन से मेटल्स को हमने पैसा करके यूज किया, देखो वी हैव यूज गोल्ड स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम लोग किस पे आ गए चिल्ड्रन, वी केम टुवर्ड्स सिल्वर, और सिल्वर के बाद में चिल्ड्रन कॉपर को यूज किया हमने पैसा करके, एल्यूमिनियम, निकल, अभी तो सीधा हम लोग कैसे गरीब हो गए तो लो क्वालिटी मेटल्स यूज किए जाते. अच्छा बच्चों, जितने भी प्रेशियस मेटल्स थे दे वर स्केर्स. स्केर्स मतलब उसका अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम था, और सब मेटल सेम नहीं होते तो यूनिफॉर्मिटी नहीं था. सो क्योंकि मेटल्स के पीसेस सेम नहीं होते तो हमने मेटल के कॉइन्स बनाना चालू किए. मेटल पीसेस एंड मेटल कॉइन चिल्ड्रन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मेटल कॉइन्स कैसे यूनिफॉर्म होते हैं ना, अगर आपने 10 रुपए का कॉइन देखा है तो ऑल 10 रुपए का कॉइन्स विल बी लुकिंग सेम, लेकिन वहीं पे अगर आप मेटल के टुकड़े यूज करोगे तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं होते, तो कितना क्वांटिटी जा रहा है कितना क्वांटिटी आ रहा है, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट वुड टेक प्लेस ना. यस, आफ्टर दैट चिल्ड्रन फोर्थ वाला पैसा इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक कॉइन्स. बच्चों लोग, ओल्ड इंडिया हैड वेरियस किंगडम्स एज यू नो. अच्छा, तो हर एक राजा क्या करता था, मेटल्स के अलग अलग पीसेस को पैसा करके वो लोग अपना राजा का सील, सील मतलब क्या, स्टैंप लगा देने का और उसको पैसा करके इंट्रोड्यूस करने का. अच्छा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉनेटरी सिस्टम वाज टेकन हुआ, और फिर गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ने पैसे को मैनेज करना चालू किया था, और गवर्नमेंट अगर इंट्रोड्यूस करेगी तो यूनिफॉर्मिटी आएगा. अच्छा, पैसे को बच्चों लीगल स्टेटस मिल गया था. ये जो मेटालिक कॉइन्स है उसको जब गवर्नमेंट इशू करते थे चिल्ड्रन, दे गेट अ स्टेटस. अच्छा, नाउ even metallic coins children are divided into different types. Listen to me, metallic coins are divided into different types. अच्छा, कौन कौन से टाइप्स है चिल्ड्रन? तो इसमें से सबसे पहला जो टाइप आता है, in fact we can have two divisions children. There is one what is called as standard or full bodied coins. पहला वाला कौन सा बच्चों लोग, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, और एक दूसरा होता है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज टोकन कॉइन्स. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब, अगर आपने कोई भी कॉइन देखा है, इफ यू हैव सीन एनी पर्टिकुलर कॉइन व्हिच बिलोंग्स टू मनी,
तो उसके ऊपर एक फेस वैल्यू लिखा रहता है, जैसे कि बच्चों एक आध कॉइन के ऊपर 10 रुपीज लिखा हुआ है तो हम लोग उसको 10 रुपीज मानते हैं। 5 लिखा है तो वी कंसिडर एज 5 रुपीज। इफ दे हैव रिटन 2 इट्स अ 2 रुपी का कॉइन, 1 लिखा है तो 1 रुपी का कॉइन, राइट। अच्छा, अभी पहले जमाने में क्या होता था बच्चों लोग कि वो जो मेटल है, मेटल जैसे कि 10 रुपए का कॉइन बनाने के लिए हमने जो मेटल यूज किया बच्चों लोग, वो मेटल 10 रुपए का होता था। तो क्योंकि वो मेटल 10 रुपए का होता था, दैट इज वाई वी यूज्ड टू राइट ₹10 ऑन द फेस। मतलब क्या होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब चलो उसके मेटल का वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर लिखा हो। तो अंदर मेटल का भी 10 रुपए है और फेस पे लिखा भी 10 रुपए, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फेस वैल्यू, राइट। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि इंडिया हु इशूज ऑल द करेंसीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो उसको हम लोग बोलते हैं इशूइंग अथॉरिटी। तो इशूइंग अथॉरिटी बच्चों वो मेटल के ऊपर उसका फेस वैल्यू लिखता है, राइट। और एक कॉइन जनरली बच्चों लोग गोल्ड सिल्वर के बनाए जाते थे, ब्रिटिश टाइम पे ज्यादातर यूज किए जाते थे। सो वेन एवर द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉइन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइन, देन दोज कॉइन्स आर रिफर्ड टू एज अ स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, राइट। मतलब चलो अगर 10 रुपए का कॉइन, अगर उसका मेटल अगर आप तोड़ भी दोगे और मार्केट में जाके बेच के आओगे तो भी आपको उसका 10 रुपए मिलना है, क्योंकि उसमें हमने 10 रुपए का मेटल यूज किया है। तो दैट इज इट, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम है, तो उसको हम लोग फुल बॉडीड कॉइन्स करके रिफर करते हैं। हाँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चिल्ड्रन, आपको पता है मेटल्स शॉर्टेज में होते गए। अच्छा, मेटल्स का वैल्यू कम होता गया। अच्छा, और फिर हमने क्या किया, मेटल का इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और ही रहेगा और उसको हम लोग कुछ अलग ही फेस वैल्यू देंगे। So whenever the face value of any particular coin is higher than the intrinsic value, then those coins are referred to as token coins. जैसे कि बच्चों मेटल हमने एक या फिर 2 रुपए का लिया और उसके ऊपर आपने 10 रुपए करके प्रिंट किया है, तो फेस वैल्यू कितना हुआ 10 और मेटल का वैल्यू कितना है 2। सो फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ऐसे वैल्यू के कॉइन्स को हम लोग टोकन कॉइन्स करके रिफर करते हैं। अब एक पेपर के ऊपर मतलब 200 रुपए लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब वो पेपर 200 रुपए का नहीं होता ना बच्चों, वो पेपर तो 10-20 रुपए का रहेगा, लेकिन आपने देखा फेस वैल्यू ज्यादा है 200, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। और हमने क्योंकि एल्यूमिनियम जैसे चीपर या फिर निकल जैसे मेटल्स को यूज करना चालू किया था, ये कॉइन्स लो डिनोमिनेशन वाले, डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू, और छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, इंडिया में चलो जितने भी कॉइन सर्कुलेशन में वो सबके सब टोकन कॉइन्स है। प्रेजेंटली वी डू नॉट यूज फुल बॉडीड कॉइन, मतलब आज के डेट में चलो फुल बॉडीड कॉइन्स आपको मिलते नहीं है। ओके, सो डिफिकल्टीज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गिव राइज टू पेपर मनी। अभी टोकन कॉइन्स उसका वेट और फिर शॉर्टेज ऑफ मेटल्स, ये सब रीजंस की वजह से फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया चिल्ड्रन, इन द कमिंग ईयर्स वी हैड पेपर मनी दैट केम अराउंड। तो जब आप पेपर मनी की बात करते हो, तो पेपर मनी मेटेलिक मनी का बच्चों लोग एक सब्सटीट्यूट है। पहले था सब मेटेलिक मनी और फिर हमने लाया पेपर मनी। अच्छा, अब तक बच्चों लोग क्या हो गया था कि लाइक जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे कि इन इंडिया चिल्ड्रन वी हैव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उनके पास पैसा इशू करने का मोनोपोली होता है। मोनोपोली, व्हाट इज मोनोपोली? सिंगल अथॉरिटी। तो पेपर मनी में चिल्ड्रन वी हैव गॉट टू करेंसीज, एक वो पैसा जो गवर्नमेंट इशू करती है और वो पैसा जो सेंट्रल बैंक इशू करती है। जैसे 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। अच्छा, कॉइन्स और 1 रुपए का नोट के अलावा बाकी जितने भी नोट्स आएंगे, जितने भी कॉइन्स आएंगे, दे आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एज यू कैन सी मैंने जो बोला यहाँ पे लिखा है 1 रुपी नोट। ओके, और जितने भी कॉइन्स और सबके सब कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। अच्छा, 1 रुपए के ऊपर के जितने भी नोट्स आते हैं बच्चों लोग, दे विल बी प्रिंटेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, पेपर मनी का भी प्रॉब्लम था बच्चों लोग, हैंडल करने में प्रॉब्लम, उसका लाइफ कम रहता है, खराब हो जाता है। अच्छा, स्टोर करके रखने का टेंशन। तो धीरे धीरे बच्चों लोग हमने किसको जन्म दिया था? फिर वी केम अक्रॉस बैंक मनी। Now the question arises, children,
व्हाट इज बैंक मनी? बैंक मनी होता क्या है? बैंक मनी का मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि आप जाके बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो, राइट? दैट इज अ कैश विच इज सेव्ड बाय द पीपल, और उसकी वजह से क्रेडिट मनी क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आपने जितना भी पैसा रखा है बैंक में, आप चाहो तो उसको विड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ट्रांसफर करते हो। कैसे बच्चों लोग? वी कैन बेसिकली यूज चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट यूज किए जाते हैं। अच्छा, अभी चेक और डिमांड ड्राफ्ट जो है ना बच्चों लोग, क्या चेक और डिमांड ड्राफ्ट, दे आर कॉल्ड एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोला था उनको? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। और जनरली ये ट्रांसफरेबल होते हैं। और एक आज के डेट में बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, राइट? एंड दे आर द बैकग्राउंड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। आज के डेट में बच्चों हमने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट देना चालू किया है। तो क्योंकि कैश, फिर ऑल द ब्लैक मनी, ओके, ऑल दैट problems have given birth to the next money children, that is referred to as plastic money. Plastic money children, please do not misunderstand. Plastic money मतलब plastic का पैसा नहीं होता. Plastic money is a general word that we have for credit cards and debit cards, right? Okay, so seventh वाला है बच्चों लोग आपके सामने यहाँ पे, that is called as plastic money. अच्छा, प्लास्टिक मनी बच्चों लोग यूज करने के लिए एकदम आसान, ट्रांजैक्शंस भी बच्चों लोग एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किए जाते हैं। इसमें दो आते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, और इसमें बहुत सारे इनोवेशंस हो गए बच्चों लोग, और उसकी वजह से आई होप यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, डेबिट कार्ड एक प्रीपेड होता है, अपने अकाउंट में यूज करो। क्रेडिट कार्ड चिल्ड्रन इट्स अ पोस्ट पेड कार्ड, आपके अकाउंट में नहीं है यूज करने का और बाद में पे करने का। अच्छा, और जैसे जैसे इनोवेशंस होते गए, अल्टीमेटली चिल्ड्रन वी हैव कम थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मनी। किसकी तरफ आए हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ। ओके, देन children, finally we come across the next type of money, that is electronic money. Now as far as electronic money is concerned children, okay, with the amount of technological developments that we are experiencing, I think this is the utmost and the most advanced technology that we have for money, and it's nothing but the electronic money. Acha, electronic money children, in short it's also referred to as e-money. अच्छा, money children that is stored and transferred electronically through variety of means, और ज्यादातर आपको पता है phones, या फिर आपके पास tablets हो सकते हैं children। अच्छा, along with that you could also have a computer, और इस सब के जरिए बच्चों लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग जो पैसे को यूज करते हैं चिल्ड्रन, दैट विल बी बेसिकली रिफर टू एज अ इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो अभी मोबाइल वैलेट्स वगैरह होते हैं, सो दे आर क्वाइट फेमस नाउअडेज। ये कोविड के 19 के टाइम पे चिल्ड्रन, व्हेन वी सॉ कि like total lockdown, you couldn't go to the banks and all, but since we had all these wallet bankings and those payment apps that we had children, with the help of all those स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ओके, और ये सब बच्चों लोग किसके जरिए हैंडल किया जाता है? ऑब्वियसली द सेंट्रल बैंक। दे आर नॉट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक चिल्ड्रन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मनी चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर परचेसिंग। जैसे कि आप, वो स्कैनर कोड रहता है, क्यूआर कोड दिया जाता है, उसके जरिए चिल्ड्रन वी कैन गो ऑन मेकिंग परचेसेस, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, in any part of the world. And those digital wallets are also form of stored electronic money. Okay, तो बच्चों आपके अकाउंट में पैसा है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हो, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल मनी करके रिफर किया जाता है उसको। One more small point you should know children, okay, यहाँ पे एक डिवीजन दिया हुआ है, ओके, दो टाइप्स के मनी के बारे में। मनी चिल्ड्रन दो टाइप्स का होता है, एक लीगल टेंडर मनी और एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। बच्चों अगर आप एक 2,000 रुपए का नोट लोगे तो उसके ऊपर आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। मतलब क्या हो गया? लीगली बच्चों के पैसा है बाय लॉ। और 2,000 का नोट अगर आपको सामने से कोई दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो? ऑब्वियसली नो। मतलब इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन ट्रांजैक्शन बाय एनीबॉडी ऑन व्हाट एवर ग्राउंड्स इट शुड। मतलब 2,000 का नोट लेने के लिए आपको कोई ना तो बोल ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज लीगल। और कोई भी लीगल चीज को ऑब्वियसली चिल्ड्रन यू कैन नॉट रिजेक्ट इट।
Why? Because it is legal. So all the currencies and all the notes, children, whether they are coins or paper notes, they're considered as legal tender money in India. But children, there is another part to this. There is non-legal tender money. मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि this money is also used generally by the people for payments, but सामने वाले के ऊपर बच्चों लोग कोई कंपल्शन नहीं होता है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो ना बोलता है तो भी वो ना बोल सकता है क्योंकि इट्स नॉट लीगल मनी, उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। Children, if someone is giving you a note of 2000 rupees, you cannot refuse it, right? But if someone is offering you a check of rupees 2000, you can either accept it or you can also refuse it. जैसे कि हमने लाइक 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप अपने अकाउंट्स में चिल्ड्रन विल बी हियरिंग अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था ट्रेड करने का, ट्रेड करने के बाद में पैसा 2-3 महीने के बाद मिलेगा तो तब तक एक बिल बना के रखा जाता था कि मैं तुमको 3 महीने के बाद इसका इतना अमाउंट पे करूंगा करके, तो उसको भी पैसा करके माना था। बट इट totally or solely depends on the other party whether they want to accept that money or they want to reject it. And even if they reject, you cannot take any action because it is considered as optional money. क्या बोला था उसको? ऑप्शनल मनी बोला जाता है उसको, राइट? So this is children. So in the exam children, if you come across this question regarding evolution of money, you should be able to explain it out, how we started with animal money and how we have almost reached to a stage where we use electronic money or digital money, right? Yes. Now children, based on that, अभी आने वाले lectures में मैं आपको will be studying कि like what are the different qualities of good money, मतलब अच्छे पैसे के qualities क्या होते हैं, and along with that children मैं आपको money के functions सिखाऊंगा। क्या सीखेंगे हम लोग? विल बी स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, तो मुझे लगता है आने वाले लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक भी खत्म कर देंगे। सो क्वालिटीज ऑफ गुड मनी तो चलो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर दैट वी हैव, उसके साथ में फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो मुझे शायद आपको फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करवाना है और मुझे आपको सेकेंड चैप्टर का भी एक्सरसाइज करवाना है सॉल्व। So I will get it done for you. Don't worry about that. If you got any difficulties, you're always welcome. Right? Hope so. 11th आपका smoothly अभी कम से कम digitally तो जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको lectures देख के थोड़ा सा studies के touch में रहना है। Totally ignore मत करो। Exams होंगे क्या नहीं होंगे वो आपका responsibility नहीं है, जब होंगे तब होंगे, लेकिन आपको थोड़ा prepared रहना होता है। Right? So that's all for today children. See you in the next lecture, and as I said, in the next lecture I will complete chapter number 2 और फिर आने वाले lectures में मैं आपको दोनों का भी exercise solve करा के दूंगा। Then we'll move ahead with the third chapter children. The third chapter पूरा statistics और sums के बारे में। So bye everyone, take care, see you in the next lecture.